I will going to show you displacement reaction. Okay, so this is copper sulfate solution and this is silver nitrate solution. Originally silver nitrate is transparent solution, copper sulfate is blue in color. Okay, I am going to add iron to this copper sulfate solution and zinc metal to this conical flask. Okay, and copper metal to silver nitrate. Okay, so we will see after 20 to 25 minutes displacement reaction, how displacement occurs and which metal displaces to other element. Okay, so we know that most reactive element displaces the least reactive element from their compounds. Okay, so we will meet after 20 to 25 minutes. Okay. Let me check the changes. Okay, this is original copper sulfate solution. We will store this beginning the experiment for reference. Okay, so actually में copper sulfate का यही कलर होना चाहिए था यदि change नहीं हुआ है. Okay, so in displacement reaction, highly reactive metal displaces the least reactive metal. Okay, so in this copper sulfate solution and iron nail metal. Okay, so I immersed iron nail into this. Let's see what happened. Okay, in the beginning ये nail ऐसी थी. Okay, so see the brown color of this nail, this is copper. ओके, सो आयरन ने कॉपर को कॉपर सोल्यूशन से डिस्प्लेस कर दिया. मीन्स कॉपर आयंस डिपॉजिटेड एट दिस आयरन मेटल नेल. ओके, सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ आयरन, displacement of copper by iron. Okay, it means iron is more reactive than copper. Okay, let's see second example. I added zinc metal into copper sulfate solution. The color of copper sulfate is little bit changed. So see, zinc metal originally having this texture or this luster, and after that you can see clearly brown deposition occurs. Okay, so this brown deposition is copper. So from copper sulfate solution zinc displaces copper, है ना, और the reactivity of zinc is higher than copper. Okay, इससे आप ये कंक्लूजन नहीं निकालेंगे कि हमेशा कॉपर को ही दूसरे मेटल्स डिस्प्लेस करते हैं. ओके, सी दिस एग्जाम्पल. ओके, इनिशियली you have seen silver nitrate is colorless solution. Okay, so after some times when we put copper metal into it, so color of solution is changed. Okay, so copper remains. See, on the surface of copper, copper beginning में ऐसा था, अब कॉपर का कलर देखिए. सिल्वर एक्चुअल में ये हल्का सा ग्रेइश रहता है और शाइन करता है. आप क्लियरली देख सकते हैं इसमें कॉपर के स्ट्रिप पर कॉपर की जो फिलिंग है उस पर सिल्वर डिपॉजिट हो गया है. ओके, हम इसे यदि 2 और 3 आवर्स के लिए छोड़ देंगे तो ये ब्लू कलर का होने लगेगा. वाई? बिकॉज कॉपर इसका कलर चेंज हो रहा है, तो इसका जो ये ग्रेइश या ब्लैकिश कलर आ रहा है, दिस इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर एटम. ओके, सो ऑन कॉपर फिलिंग silver is deposited as well as this silver is also present in the aqueous solution. Okay, not in dissolved form.
डिजॉल्व फॉर्म में सिल्वर मेटल नहीं होगा। मेटल कभी भी पानी में डिजॉल्व नहीं होते, वो उसमें ऐसे ही इमर्स्ड पड़े हुए हैं। सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिल्वर बाय कॉपर, इट मीन्स हमेशा कॉपर रिएक्टिव, हमेशा कॉपर कम रिएक्टिव हो ऐसा नहीं है। सो वी विल कंपेयर द रिएक्टिविटी हियर। Fe is more reactive than copper. In this case, zinc is more reactive than copper, but here copper is more reactive than silver. So we have seen 3 combinations for displacement reaction. Okay. Uses of common metals: iron, railing, pipes, tanks, chain, wires, steel. स्टील भी एक एलॉय है, तो स्टील बनाने में आयरन के साथ में हमें कार्बन या दूसरी मेटल्स भी ऐड करना पड़ते हैं, मिक्स करने पड़ते हैं। सो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ स्टील इज आयरन। बिल्डिंग मटेरियल बनाने में, सिलेंडर बनाने में, एलॉय फॉर्मेशन में, तो आयरन का ये यूज है। कॉपर इलेक्ट्रिक वायर एंड अप्लायंसेस, कॉपर के वायर जो रहते हैं आपने सबने देखा होगा, आपके घरों में होंगे। सो कॉपर के वायर्स एंड इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस बनते हैं, यूटेंसिल्स भी होते हैं और एलॉय बनाने में भी काम आते हैं। ओके, इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द एलॉय। क्या होते हैं एलॉय, ये अपन नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे। ठीक है। जिंक ओवरहेड केबल्स बनाने में, कुकिंग यूटेंसिल्स बनाने में और गैल्वेनाइजेशन में। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, आयरन के ऑब्जेक्ट पर, आर्टिकल के ऊपर एक जिंक की लेयर, एक कोटिंग कर देते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है, आयरन में रस्टिंग नहीं होती है, कोरोजन। हमने मेटल के फिजिकल प्रॉपर्टीज में भी पढ़ा हुआ था, तो मेटल की प्रॉपर्टीज में कि कोरोजन क्या होता है, और आपके डिटेल में है, लेकिन वो चैप्टर के एंडिंग में है, इसलिए आप परेशान नहीं होंगे। गैल्वेनाइजेशन मीन्स जिंक को हम आयरन के ऊपर एक लेयर लगा देते हैं। ठीक है, तो जिंक का यूज हुआ। लेड, इलेक्ट्रोड्स बनाने में। इलेक्ट्रोड्स क्या होता है, बैटरी के अंदर जो आप रॉड जैसी देखते हो ना चीज, वो क्या होती है, इलेक्ट्रोड्स होती हैं, तो वो लेड की भी बनती हैं। ठीक है, जैसे ऑटोमोबाइल्स की जो कार वगैरह की बैटरी होती है ना, उसमें लेड क्या है, इलेक्ट्रोड का काम करता है। सिल्वर एंड गोल्ड ज्वेलरी बनाने के काम आता है। प्लेटिनम की भी ज्वेलरी बनती है, तो प्लेटिनम इज ऑल्सो यूज टू फॉर्म मेक ज्वेलरी। एंड इलेक्ट्रोड्स में भी आप ये देखेंगे आगे की क्लासेस में, इलेक्ट्रोड में भी, मतलब इलेक्ट्रोड को हम कनेक्ट कर देते हैं वायर से, बैटरी से जोड़ देते हैं, तो उससे भी करंट फ्लो होता है। ओके, और प्रीवियसली वी डिस्कस दैट मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सो वी कैन यूज मेटल्स एज इलेक्ट्रोड। एंड निकिल से भी हम एलॉय बनाते हैं। स्टेनलेस स्टील वगैरह इन सब में क्या होता है, निकिल भी मिलता है। Chemical properties of non-metals. Chemical properties of non-metals. So first, reaction with oxygen. Reaction with oxygen. So non-metals react with oxygen and they form oxides. For example, sulfur, when react with oxygen, it will form sulfur dioxide. Carbon react with oxygen, so it will form carbon dioxide. Nitrogen N2 react with oxygen and they form NO2. Hydrogen, on giving condition, normally it can't react with oxygen. At room temperature, hydrogen does not react with oxygen. But when we provide electricity of this mixture, so it will produce water. ठीक है, सो नॉन मेटल्स जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके उनके ऑक्साइड्स बनाते हैं। क्लियर है? द oxides of non-metal are acidic in nature. Okay, oxides of non-metals are acidic in nature. In the case of metals, so metal oxides are basic in nature and
Non-metal oxides are acidic in nature. All these are acidic. Okay, ये acidic oxides हैं. ये non-metal के oxide है और ये acidic होते हैं. Clear हुआ? तो ये कैसे पता चला ये acidic होंगे? When you dissolve sulfur dioxide, suppose you want to dissolve sulfur dioxide. SO2 क्या है? SO2 is sulfur dioxide. If you dissolve sulfur dioxide in water, so it will produce H2SO3. This is sulfurous acid. इसका नाम ही है acid. Clear है? So sulfur dioxide are acidic in nature. So non-metal oxides are acidic in nature. Clear? Next. Reaction with oxygen is covered, but non-metals do not react with acids, water and alkalis. ये एसिड से, वाटर से और अल्कली से रिएक्ट करते हैं. डू नॉट रिएक्ट विथ एसिड्स, बेसेस एंड वाटर. ओके, एसिड, बेस और वाटर से रिएक्शन नहीं करते नॉन मेटल्स. सो इसीलिए तो जो हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल्स हैं, हाईली रिएक्टिव मतलब उनको ऐसा एक्सपोज नहीं रख सकते हैं कि एयर में डायरेक्ट रख दिया हमने, तो उसे क्या करते हैं, इसीलिए तो इन्हें, जैसे फॉस्फोरस इज हाईली रिएक्टिव. ठीक है, सो इट विल केप्ट इन वाटर. इसको हम पानी में इमर्स्ड करके रखते हैं. तो आपसे ये पूछ सकते हैं कि फॉस्फोरस तो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, फिर हम उसे पानी में क्यों पानी में हमने उसको स्टोर करके रखा हुआ है? क्या वो पानी से रिएक्शन नहीं करता? एग्जैक्टली, वो वाटर से रिएक्शन नहीं करता है ना, इसीलिए हमने उसको वाटर में रखा हुआ है. क्लियर है? सो नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ एसिड्स, बेसेस एंड वाटर एंड दे ओनली रिएक्ट विथ ऑक्सीजन. सो दे फॉर्म ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल, और ये ऑक्साइड्स जो नॉन मेटल के होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं. क्लियर है? यूजेस ऑफ common non-metals. Nitrogen to preserve packed food. जो चिप्स, कुरकुरे के पैकेट आते हैं ना, आप उसपे देखते हो ना, कुछ फूले हुए रहते हैं. वो क्यों? क्योंकि उसमें एयर भरी रहती है. अपन ऐसा सोचते हैं, बट उसमें एयर नहीं होती है, उसमें नाइट्रोजन गैस होती है. ठीक है, तो उस नाइट्रोजन गैस क्या करती है, उससे प्रेशर, बाहर के प्रेशर से उस कुरकुरे को या चिप्स को प्रोटेक्ट करती है, क्योंकि अंदर वो फिल है. ठीक है, तो वो उसके अंदर एक प्रेशर है उस पैकेट के अंदर, तो बाहर से कोई भी जर्क लगेगा तो सेफ रहेगा हमारा चिप्स. ठीक है, इन बल्ब्स में भी फिल करते हैं और फर्टिलाइजर में भी यूज होता है. जैसे यूरिया, आपने सुना ना, यूरिया एक फर्टिलाइजर है, तो उसमें नाइट्रोजन होता है. नेक्स्ट इज ग्रेफाइट कार्बन का एक फॉर्म है. ठीक है, दो इट इज नॉन मेटल बट इट इज अ गुड कंडक्टर. ग्रेफाइट जो है वो नॉन मेटल है, लेकिन कार्बन का ही एक स्पेसिफिक फॉर्म होता है जो कंडक्टर होता है, तो हम उसका इलेक्ट्रोड बना सकते हैं. एंड पेंसिल्स में ग्रेफाइट यूज होता है, आप सभी यूज करते हो, पेंट इंडस्ट्री में भी यूज होता है. आयोडीन आपने सुना होगा ना, कहीं कोई बॉन्ड हो गया, कोई घाव हो गया, उसको साफ करते हैं. एक थोड़ा सा ब्राउन कलर की, येलोइश ब्राउन कलर की एक लिक्विड रहता है, उससे वो नर्स या आपके बॉन्ड को, आपके जो घाव को साफ करते हैं. वो क्या है? वो टिंचर आयोडीन, आपने सुना होगा. ओके, सो आयोडीन इज यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक, उसको साफ करता है, एंटीसेप्टिक का काम करता है. फॉस्फोरस फर्टिलाइजर्स में काम आता है. मैच बॉक्स, मैचिंग स्टिक में जो आप माचिस देखते हो ना, उसमें फॉस्फोरस रहता है. ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका सल्फर रबर इंडस्ट्री में यूज होता है. स्किन ऑइंटमेंट में भी यूज करते हैं सल्फर को. सोफ्रामाइसिन वगैरह जो रहते हैं उन सब में, मतलब ये स्किन ऑइंटमेंट जितने भी होते हैं, मतलब वो भी एक तरह से एंटीसेप्टिक का ही काम करते हैं. ठीक है, उसके काम आता है मेकिंग सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए सल्फर तो चाहिए है. सल्फ्यूरिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल होता है.
ठीक है, और क्रैकर्स में भी सल्फर यूज होता है, ठीक है। तो ऑल दीज द यूजेस ऑफ सम कॉमन नॉन मेटल्स, सारे नॉन मेटल्स का तो नहीं, कुछ जो कॉमन है जनरली आप लोग देख पाते हो उनका ये यूज है।